ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، قربانی کے مسائل کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے قربانی کے مسائل میں سے قربانی کے جانور کے تعلق سے ہی چند باتیں پیش کی جائیں۔ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے اور کون سا عیب جانور میں ایسا ہے کہ اگر وہ عیب پایا جائے تو اس جانور کی قربانی صحیح ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ افضل جانور کون سا ہے قربانی کے لیے۔ افضل جانور، تو افضل جانور جو بھی ہے اس کی قربانی کرنی چاہیے، تو افضل جانور کون سا ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کے لیے بعض فقہائے کرام نے دلیل لی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، جس کو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اس لیے اس کی تخریج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی صحت وغیرہ کا حکم لگانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی بھی ہے، جمعے کے مسائل میں یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فی الساعۃ الاولی، کہ جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا، جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا، یعنی غسل جنابت کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ آدمی شادی شدہ ہو اور بیوی کے ساتھ اس نے جو شوہر اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان وظیفہ زوجیت ہے، جو ایک خاص عمل ہے، وہ عمل اس نے انجام دیا اور اس کے بعد غسل کر کے وہ مسجد کی طرف روانہ ہو، تو آپ نے کہا کہ جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ پہلی گھڑی میں مسجد کے لیے روانہ ہو گیا، یعنی جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہو گیا، مسجد کے لیے نکل گیا، مسجد گیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدْرَةً، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب، ویسے ہی جو ہے یہ شخص جو کہ پہلی گھڑی میں غسل جنابت کرنے کے بعد پہلی گھڑی میں مسجد کے لیے روانہ ہو گیا، مسجد گیا، تو اس کو ثواب ایسے ہی سمجھو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی ہے۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو اس نے گویا کہ ایک گائے کی قربانی کی ہے، یعنی اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، اور جو تیسری گھڑی میں گیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ قَبْشًا أَقْرَنَ،
تو گویا کہ اس نے ایک سینگ والے میڈھے کی، ایک سینگ والے جو ہے شیپ کی قربانی دی اس نے۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قربت دجاجۃ، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، یعنی مرغی کو جو ہے صدقے کے طور پر اللہ کے لیے پیش کیا، کیونکہ مرغی کی قربانی تو جائز نہیں ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضۃ، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا کہ اس نے اللہ کے لیے ایک انڈے کو صدقے میں پیش کیا، اور کسی بھی جو ہے غریب مسکین کو دیا اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کے لیے ایک صدقہ پیش کرنا، اور وہ بھی انڈے کی شکل میں، کیونکہ انڈے کی قربانی تو جائز نہیں ہے، اس لیے قربانی کا معنی یا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پانچویں گھڑی کے بعد، اس کے بعد کہا آپ نے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام نکل جاتا ہے یعنی خطبے کے لیے، امام جیسے ہی منبر پر آیا تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں ذکر کو یعنی خطبے کو سننے کے لیے۔ اور اس طریقے سے یہ جو رجسٹر میں نام لکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، جو بھی جمعے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان کے نام رجسٹر میں درج ہوتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ دلیل اس حدیث سے لی ہے کہ سب سے افضل قربانی یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی پیش کی جائے، اس کے بعد جو ہے قربانی بڑے جانور کی، اور اس کے بعد جو ہے اب بڑے جانور کا سمجھ گئے ہوں گے آپ، جو ہے جو بھی اس میں بیل اور گائے ہیں وہ اس میں داخل ہے، ایسے ہی اونٹ اور اونٹنی دونوں پہلے میں داخل ہے، اور تیسرا جو آپ نے پیش کیا اس میں گوٹ اور شیپ، چاہے ہی گوٹ ہو چاہے شی گوٹ ہو، دونوں اس میں داخل ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب جو پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قربانی کے تعلق سے، وہ یہ ہے، یعنی ثواب کے تعلق سے جو ترتیب آپ نے پیش کی ہے، وہ ثواب کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو ہے بڑے جانور کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو ہے گوٹ اور شیپ کی قربانی کا جو ہے ثواب۔ یہ جو آپ نے ترتیب بیان کی ہے، اس ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی جو ہے اونٹ کی قربانی پیش کرے، افضل یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی پیش کرے۔ اس ترتیب سے یہ بات جو ہے لوگوں نے پیش کی۔ لیکن جو ہے یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، تو طریقہ یہ تھا کہ آپ نے تو حج کے موقع پر جو ہے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی تھی، لیکن آپ مدینے میں عام طریقے سے آپ جو ہے صحابہ سے جب قربانی کا جانور منگاتے تھے تو 2 میڈھے منگاتے تھے، 2 کبشے جو ہے میڈھے، یا جسے آپ شیپ کہہ لیجئے، سینگ والے اچھے جو ہے خوبصورت، پہلے بھی اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کو منگا کر کے آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ حدیث یعنی یہ بتا رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میڈھے کی قربانی کرتے تھے، کبشے کی قربانی کرتے تھے، آپ جو ہے آپ شیپ کی قربانی کرتے تھے، تو اگر اونٹ کی قربانی افضل تھی تو آپ کو اونٹ کی قربانی کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک سوال آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو، تو میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا، اس مسئلے کو واضح کرنا چاہوں گا، کلیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے اس کی 2 شکلیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی پورا اونٹ خرید کر کے اس کی قربانی پیش کرے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی یہ اونٹ کی قربانی ایک میڈھا قربان کرنے کے مقابلے میں، ایک شیپ قربان کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب ملے گا اس میں۔ اور یہ حدیث اسی کو بتا رہی ہے، یعنی یہاں کیا ہے، گویا کہ ایک اونٹ کی قربانی تھی، یعنی پورے اونٹ کی قربانی۔ یہاں جو ہے اونٹ میں حصہ لینا یہ افضل نہیں ہوتا،
यानी बाज़ लोग क्या समझते हैं कि अगर हिस्सा भी ले लेंगे तो शायद जो है ये अफजल हो जाएगा। नहीं नहीं, पूरे ऊँट की कुर्बानी की गुंजाइश नहीं है। और जो है ये शीप लेकर के कुर्बानी कर सकते हैं, तो उस वक्त शीप की कुर्बानी एक हिस्सा लेने के बजाय ऊँट में या बड़े जानवर में एक हिस्सा लेने के बजाय एक शीप की कुर्बानी करना अफजल होगा। याद रखिएगा, ये ऊँट की कुर्बानी कब अफजल करार पाएगी, जब एक ऊँट खुद एक आदमी अपनी तरफ से कुर्बानी में दे। इसी तरीके से उसके बाद एक बड़ा जानवर कोई आदमी, चाहे वो बैल हो चाहे गाय, वो अपनी तरफ से कुर्बानी में दे तो ये अफजल होगा उस वक्त, इसके मुकाबले में जो है ये शीप के मुकाबले में। वैसे भी आप जानते हैं कि एक ऊँट की कीमत ज़्यादा होती है, एक बड़े जानवर की कीमत ज़्यादा होती है, और उसके मुकाबले में एक जो है शीप की और एक गोट की कीमत जो है कम होती है, और उसी लिहाज से इसकी अफजलियत भी होती है। यानी ये अफजल तभी करार पाएगा जब एक आदमी अपनी तरफ से पूरा ऊँट कुर्बान करता है। तो हमारे यहाँ जो तस्वुर है वो क्या है कि बड़े जानवर, चाहे ऊँट हो चाहे जो है ये बैल और गाय, उसमें लोग शिरकत करते हैं, न कि पूरा जानवर अपनी तरफ से ज़बह करते हैं। आम तरीके से होता यही है। अगर पूरा जानवर ज़बह करे अपनी तरफ से तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक ऊँट की कुर्बानी अगर किसी ने की है तो वो एक मेढे की कुर्बानी से अफजल है। जैसा कि इस हदीस से, जुमे वाली हदीस से ये बात हमको समझ में आती है, हम इसका इनकार नहीं करते, ये बात हमको समझ में आती है इस हदीस से। और जो है इस लिहाज से ये सही भी है कि दलील लेना भी सही है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि अगर हमने हिस्सा ले लिया, सिर्फ शरीक हो गए ऊँट में या जो है बैल में, तो शरीक होने से भी हमको वही अजर व सवाब जो है मिलेगा जो पूरे ऊँट की कुर्बानी का या पूरे बैल की कुर्बानी का जो सवाब है वो सवाब हमको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं है। उस वक्त तो फिर एक जो है शीप की या एक गोट की कुर्बानी पेश करना ये ज्यादा अफजल होगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही ना करते थे। आप जो है मदीने में रह करके आपने एक जो है मेढे को, एक दुम्बे को, एक जो है शीप को आपने कुर्बानी में पेश किया अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से। तो ऐसा भी है, एक कुर्बानी आपने पेश की अपनी उम्मत की तरफ से। आम तरीके से था ऐसे ही कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कुर्बानी किया करते थे। तो ये चीज थी, ये जो है दो मेढे आप कुर्बान करते थे। तो सिर्फ जो है मेढा अगर कम पैसे में कुर्बानी करना है तो अब उसके लिए आदमी हिस्सा ले लेता है कि अकेले पूरे ऊँट की कुर्बानी नहीं कर सकते, अकेले पूरे बैल की कुर्बानी नहीं कर सकते, तो उसमें शेयर ले लेता है, हिस्सा ले लेता है। तो उस शेयर लेने से बेहतर ये है कि आदमी जो है मेढे की कुर्बानी करे, शीप की कुर्बानी करे, ये अफजल है उस वक्त। लेकिन अगर पूरा जानवर खुद ज़बह करके खुद जो है वो अपनी तरफ से कुर्बानी में पेश करता है, वो कोई शेयर नहीं लेता है, तो तरतीब यही होगी कि सबसे जो है इसमें बेहतर ऊँट की कुर्बानी है, उसके बाद फिर बड़े जानवर बैल और गाय की कुर्बानी है, उसके बाद फिर जो है गोट और जो है शीप का नंबर आता है। तो ये मेरे भाइयों इस मसले की वजाहत थी, इसको हमने आपके सामने क्लियर किया। अब उसके बाद जो छोटा जानवर है यानी जो है शीप और गोट, इसमें शिरकत यानी शेयर ये जायज़ नहीं है। तो एक आदमी को ही अपनी तरफ से कुर्बानी में देना है, इसमें किसी की शिरकत नहीं होती है, शराकत नहीं होती है, इसमें शेयर नहीं होता है। लेकिन बड़े जानवर में शेयर की बात अहादीस में आई है। और इस सिलसिले में ऊँट और गाय के ताल्लुक से एक रिवायत में ये बात है, एक हदीस में ये बात है कि 7 आदमी गाय में और 7 आदमी ऊँट में, या कहिए बैल में और जो है ऊँट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, ये गुंजाइश है, 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। इस सिलसिले में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, उस हदीस में ये बयान है, वो कहते हैं कि नहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदैबिय्यति,
अलबुदनत अन सबअतिन वल बकरत अन सबअतिन, कि हमने जो है नहर किया ज़बह किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हम हुदैबिया में थे, हुदैबिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से गए और हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया, तो वहाँ पर आपने जो जानवर ये लोग लेके गए थे उनको वहीं कुर्बान कर देने का जो है आपने हुक्म सादिर फरमाया। तो उसी के बारे में कहते हैं जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हमने उस मौके पर एक ऊंट को 7 आदमियों की तरफ से जो है ज़बह किया, इसी तरीके से गाय को भी 7 आदमियों की तरफ से ज़बह किया। ये हदीस मुअत्ता मालिक की है, सही मुस्लिम की है। तो बहरहाल हदीस चूंकि सही है, साबित है और यही काफ़ी है हमारे लिए, तो इस हदीस से जानवर, बड़े जानवर यानी ऊंट, गाय, बैल में शिरकत करने का सबूत मिलता है। यानी एक से ज्यादा आदमी शरीक हो सकते हैं और जितने आदमी शरीक हो सकते हैं उसकी तफसील भी जिक्र कर दी गई है कि 7 आदमी शरीक हुए, गाय में भी ऊंट में भी। ये सुलह हुदैबिया के मौके पर ऐसा हुआ था। एक दूसरी रिवायत यूं भी है, एक दूसरी रिवायत में ये बात भी आई है और ये सुनने तिरमिज़ी की हदीस है जिसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। वो ये है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफर फहज़रल अज़हा, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे और कुर्बानी का दिन आ गया। फश्तरकना फिल बकरति सबअ व फिल बाइरि अशरा, तो हम गाय में शरीक हुए 7 आदमी और ऊंट में शरीक हुए 10 आदमी। तो ऊंट में 10 आदमी शरीक हुए, गाय में 7 आदमी। तो इस रिवायत में ऊंट के ताल्लुक से 10 की बात आई है, जबकि गाय में वही 7 का ही जिक्र है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और इसी की रोशनी में ये बात कही जाती है कि ऊंट में 7 आदमी भी शरीक हो सकते हैं और 10 आदमी भी शरीक हो सकते हैं। ये भी सफर का वाकया था ईद उल अज़हा के मौके पर, और सफर में लोग फिर भी सफर में भी कुर्बानी किए और कुर्बानी में शिरकत भी रही, शराकतदारी भी रही, शेयर भी लोगों ने दिया। तो क्या हुआ शेयर का अंदाज कि गाय में 7 और ऊंट में 10। तो ऊंट में दोनों जायज है, 7 भी और 10 भी, क्योंकि दोनों रिवायतें मौजूद हैं। जबकि गाय और बैल में चूंकि दोनों रिवायतों में 7 ही का जिक्र है, तो उसमें सिर्फ 7 तक की शिरकत जायज है। फिर इन हदीसों से ये भी बात ज़हन में रख लीजिएगा कि इससे ये मतलब नहीं है इसका कि लाजमी तौर पर गाय या बैल में 7 आदमी हो लाजमी तौर पर। तो लाजमी तौर पर 7 आदमी का होना ये कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, 2 आदमी भी एक गाय खरीद करके या एक ऊँट खरीद करके जो है ज़बह कर सकते हैं कुर्बानी में, तो जायज़ है। एक आदमी अकेला भी कर सकता है, वो तो पहले हमने आपसे कहा। और जब एक अकेला कर सकता है, 2 आदमी भी कर सकते हैं, 3 आदमी भी कर सकते हैं, 4 आदमी भी कर सकते हैं, 5 आदमी भी कर सकते हैं, 6 आदमी भी कर सकते हैं, 7 आदमी भी शरीक होकर के कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए वाज़ेह करना चाह रहा था कि बाद लोगों का ये तस्वुर है कि जब तक 7 हिस्से पूरे नहीं हो जाएंगे और जब तक वो 7 नाम पूरे नहीं ले लेंगे, तब तक वो कुर्बानी नहीं करेंगे उसकी, कि 7 पूरे होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये अवामी तस्वुर है, सिर्फ ये लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है। वरना 7 आदमी तक शरीक हो सकते हैं, ये मतलब है उस हदीस का। अगर अकेला आदमी ही पूरा जानवर अपनी तरफ से बगैर किसी शराकतदारी के कुर्बान करना चाहे, पूरा ऊँट कुर्बान करे, पूरी जो है पूरा बैल कुर्बान करे, कोई हर्ज की बात नहीं है, जायज़ है ये। और ये हदीस से सिर्फ ये पता चलता है कि ऊँट और जो है गाय में 7 जो है, या ऊँट में 10 की भी गुंजाइश है, तो 10 तक भी लोग शरीक हो सकते हैं। वरना एक आदमी अकेला ही अपनी तरफ से पूरी कुर्बानी पेश करे, पूरा ऊँट कुर्बान करे, एक ही ऊँट क्या 10 ऊँट कुर्बान करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 100 ऊँट कुर्बानी में पेश किए थे जब आप हज्जतुल वदा में गए थे। तो ये तो जायज़ है,
इस पे कोई हरज की बात नहीं है। ये शिरकत की बात है, शराकत दारी की बात है, शेयर लेने की बात है। तो इतनी गुंजाइश रखी गई है कि ऊंट में 7 या 10 आदमी और गाय या बैल में जो है सिर्फ 7 आदमी तक गुंजाइश है। उससे कम लोग रहें तो और अच्छी बात है और ज्यादा अजर मिलेगा। अकेला आदमी ही पूरी जो है जानवर को अपनी तरफ से कुर्बानी में पेश कर दे तो और ज्यादा अजर मिलेगा। तो ये हदीस जो अभी हमने पेश की, उसी हदीस की रोशनी में ऊंट के बारे में दोनों बातें हैं, 7 की बात भी है और 10 की बात भी है। लेकिन अहनाफ और शवाफे इसके कायल नहीं। उनके यहाँ वो जो पहली रिवायत है उसी की रोशनी में वो इसके कायल है कि ऊंट हो चाहे जो है बैल, दोनों में 7 आदमी ही शरीक हो सकते हैं, 7 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अहले हदीस उलमा का यही जो है मौक़िफ़ रहा है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शेख इमाम इसहाक़ राहवई जिन्हें कहा जाता है, इब्न खुज़ैमा जो मशहूर मुहद्दिस हैं, शेख अलबानी, और जो है उलमाए अहले हदीस का हनाबिला के यहाँ भी ये चीज़ है कि जो है इस तरीके से 10 आदमी भी एक ऊँट में शरीक हो सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तो 10 आदमी भी जायज़ है, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाजमी तौर पर 10 आदमी शरीक हों। 7 ही आदमी शरीक होकर के जो है कुर्बान कर ले। मैंने आपसे कहा कि एक ही आदमी, 2 ही आदमी, 3 ही आदमी जो है शरीक होकर के पूरा जानवर जो है अपनी तरफ से कुर्बानी में पेश करें, कोई हरज की बात नहीं। तो ये बात थी मेरे भाइयों जानवर में शिरकत के ताल्लुक से। छोटे जानवर में शिरकत का मामला नहीं है, चाहे शीप हो चाहे गोट हो, सिर्फ जो है बैल, गाय और ऊंट पे शिरकत की बात अहादीस में आई है। अब जो लोग शरीक हुए हैं, जब ज़बह किया जाएगा तो जो भी ज़बह करने वाले हैं उनकी जो है दिल में ये बात रहनी चाहिए कि ये फला फला आदमी की तरफ से ये कुर्बानी है अल्लाह की। और चाहे तो जैसे नाम होता है बाकायदा नाम लिख लेते हैं तो कोई हरज नहीं, जो है दुआ के तौर पर कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फलान व फलान व फलान व फलान, कि अल्लाह तू इसे कबूल कर ले, फला 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 आदमी, जो 7 आदमी का नाम है उन सब का जो है उसमें जिक्र हो कि उनकी तरफ से अल्लाह तू कबूल कर। तो ये चीजें जो है नाम, इसीलिए 7 आदमी शरीक हैं तो 7 आदमी की तरफ से ये कुर्बानी है। तो दुआ में चूंकि ये बात आई हुई है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा मिनका वलका अन फलानी अल्लाहुम्मा मिनका वलका मिन्नी, अल्लाह तेरी तरफ से है और तेरे लिए है, मेरी तरफ से अगर अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है तो, अगर दूसरे की तरफ से कर रहा है तो उसका नाम जिक्र करना पड़ेगा। अल्लाह ये जानवर तेरी तरफ से ही था, तूने ही पैदा किया, तूने ही हमें इतना नवाजा कि हम उसे खरीद सकते थे और तेरे लिए हम कुर्बानी पेश कर रहे हैं। ये फला आदमी की तरफ से, उसकी या फला औरत की तरफ से, जो भी रहेगा उसका नाम लेते हैं। तो बड़े जानवर में जितने लोग शरीक हैं उन सब का वहाँ पे नाम लिया जाता है, ये उसका तरीका है। अब मसला ये है कि कुर्बानी करने के बाद ये गोश्त कैसे तकसीम किया जाएगा। आम तरीके से ये बड़े जानवरों में जो है जो शेयर फरोख्त किए जाते हैं, जो लोग अरेंज करते हैं कुर्बानी का, वो उतने अमानतदार नहीं है। मैंने जो देखा है बेंगलोर में, इतने अमानतदार नहीं है। यहाँ जो है ये भी एक बिजनेस बन गया है और बिजनेस के अंदाज में ही लोग इसे अंजाम देते हैं। याद रखिएगा ये शराकत दारी क्या है, ये शेयर क्या है कि 7 आदमी जो है जो आपस में मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने तय किया कि चलो हम सब एक जानवर खरीद लेते हैं और वो सब हम जो है अपनी तरफ से तो बैल ज़बह करेंगे या ऊँट जो है अपनी तरफ से ज़बह करेंगे, आपस में मिल करके खरीद करके शरीक हुए। और एक होता है कि जा करके कहीं पैसा दे दिया। आज जगह जगह टेंट लगे होते हैं और जगह जगह जो है हैंडबिल लगे हुए होते हैं। ये हमारे यहाँ बेहतरीन जानवर कुर्बानी में पेश करने का इंतज़ाम है। आइए आप शेयर, एडवर्टाइज क्यों, एडवर्टाइज जब हो रहा है तो इसका मतलब ये कि उनका कुछ न कुछ उसमें फायदा है।
वरना इतने एडवर्टाइज के लिए उसने उतने पैसे क्यों खर्च किए, क्यों ये हैंडबिल छपवाए, क्यों जगह जगह लगाया, क्यों बैनर लगाया जगह जगह, क्यों उसके आदमी उसमें उतने काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसका फायदा होगा, कोई ना कुछ चीज तो जुड़ी होगी। इसलिए इसमें अमानतदारी नहीं है। मैंने देखा है बाकायदा ये अमानतदारी नहीं है। बहुत से लोग तो 100 आदमी ने जो है उनके यहाँ रसीद कटवाई है कि जो है हिस्सा लिया है, तो शेयर लिया है, और मुश्किल से 50 आदमी का ही करते हैं। खास तरीके से जो लोग छोड़ देते हैं कि हमें गोश्त नहीं चाहिए, उसमें बाकायदा वो कॉलम भी बना के रखते हैं कि आपको गोश्त चाहिए या नहीं चाहिए। तो कहने को कहते हैं ये गोश्त हम गरीबों में तकसीम कर देंगे, लेकिन कौन जानता है। और इतने अमानतदार अगर वो लोग होते तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी इसमें हिस्सा ये जो है करते ही नहीं कि लोगों के पैसे जमा करके उनकी तरफ से कुर्बानी करने के लिए खुद अरेंज करे, उनका अपना कोई जाती फायदा नहीं, खुद अरेंज करे, ये कोई नहीं करेगा। है बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला जिसे आप कहते हैं, है जो है। आज जो हालात ऐसे हैं मेरे भाइयों, जो सेंटर्स इस्लामिक सेंटर्स के नाम पर जो चलाए जाते हैं, और जो मुख्तलिफ तंजीमें और मुख्तलिफ इदारे चलाए जाते हैं जहाँ अवाम के पैसे आते हैं, पब्लिक से पैसे जमा किए जाते हैं, वहाँ अमानतदारी नहीं है। तो ये जो तिजारत करने वाले होते हैं, बहुत से इसमें ऐसे तिजारत करने वाले होते हैं, यानी जानवर खरीदने बेचने वाले होते हैं, उन्हीं की तरफ से बैनर होते हैं कि हमारे यहाँ इंतजाम है, आप जो है शेयर दे दीजिए। लोग आसानी के लिए चले जाते हैं, शेयर ले लेते हैं। अब कुर्बानी हो जाए, हमारे घर में कौन जाएगा झंझट करने के लिए, चलो हमारे नाम से कुर्बानी हो जाएगी, उसके लिए गए, शेयर ले लिया और कह भी दिया कि आप गरीबों में खुद ही तकसीम कर दीजिएगा। कहाँ की तकसीम और कहाँ होता है। ऐसा भी हुआ है बाद जगहों पे, हमने खुद जो है देखा है कि पैसे जमा किए गए, और पैसे जमा करने के बाद लोगों ने तो हिस्सा भी गोश्त भी लेने के लिए जो है कह रखा था कि हम गोश्त लेंगे, आए लोग गोश्त लेने के लिए, बहुत से लोगों को मिला गोश्त, और उसके बाद तो जो लोग आए आखिर में देखा तो उनको गोश्त भी नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब कि जितने बाकायदा शेयर लिए गए थे उतने जानवर ज़बह नहीं, और पता भी नहीं लगता है कि ये जानवर फला फला आदमी की तरफ से ज़बह हुआ है, तो उन आदमियों का हिस्सा लगाया जाए और वो लोग उनको वो दे दिया जाए। तो 7 आदमी का उसमें हिस्सा था, वो सातों को मिल गया। वो भी इसमें नहीं होता, वो भी अमानतदारी नहीं होती है इसमें। ये तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर, बिल्कुल ये अमानतदारी नहीं होती। तो पता नहीं किसके नाम से वो जानवर ज़बह हुआ और किसके नाम का जानवर का ज़बह किया हुआ गोश्त इसको मिल रहा है, कुछ पता नहीं होता। कोई जो है अमानतदारी इसमें नहीं। तो मैं इसीलिए अक्सर लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपको वाकई जो है शेयर के साथ ही करना है, तो आप 4-7 आदमी जो है खुद इकट्ठा होकर के जानवर खरीद लीजिए। और जैसे जो है छोटा जानवर होता है, आप जो है कसाई को बुलाते हैं, तो आपके यहाँ आकर के जो है उसको चमड़ा निकाल करके गोश्त के पीस पीस करके जाता है, उसकी मजदूरी लेता है। वैसे इसके लिए भी बुला लीजिए, वो आकर के ज़बह करके जो है आपका जो है वो खाल वगैरह निकाल करके, स्किन आउट करके, बोटी वगैरह करके, उसके जो पीस पीस करके जो है वो जाए, उसकी मजदूरी ले ले। ये जो है बेहतर नज़र, ये बेहतर आदमी जाने कि ये जानवर मेरी तरफ से ज़बह हुआ है, या हम 7 आदमियों की तरफ से ये जानवर, और उसका जो भी गोश्त वगैरह है ये उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं का है, और उन्हीं को मिलना है। ये चीज़ होनी चाहिए, ये मामला होना चाहिए, और यही जो है सबसे बेहतर चीज़ है इसमें। ये असल में शराकत दारी है। ये जो अब चूँकि हज में अब ऐसा हो गया है, तो आम तरीके से लोग दलील के तौर पर वही पेश करते हैं कि हज का मामला ऐसा है कि अब क्या करते हैं, कोई कुर्बानी तो करता नहीं है, जाते हैं तो हिस्सा खरीद लेते हैं, अपना जो है वो जो पैसा जमा कर देते हैं, शेयर जो है उनका आ जाता है, और उनकी तरफ से कुर्बानी कर दी जाएगी। तो अब वहाँ पर जहाँ तक मामला है, जहाँ तक हमने सुना है, वल्लाहु आलम,
अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वहाँ अमानतदारी के साथ जानवर ज़बह किए जाते हैं और उनका गोश्त को भेजने का इंतज़ाम किया गया है, और ये सब की सब वो पैसा उन्हीं लोगों से लिया जाता है। पैसा जो है ना इन्हीं लोगों से लिया जाता है जो कुर्बानी के लिए वो रिसिप्ट जो है कटवा लेते हैं, उसी पे वो सब का खर्चा भी दाखिल होता है, सिर्फ जानवर ही का नहीं, पूरा खर्चा उसमें दाखिल होता है। तो ये बात है, वहाँ की बात थोड़ी अलग है और यहाँ पर उतनी अमानतदारी नहीं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई आदमी बड़ी अमानतदारी के साथ इसको अदा करना चाहेगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो पीछे हट जाएगा, पीछे हट जाएगा। नहीं भाई, उतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन सब कर लेगा, कल क़यामत के दिन तो हमारी पकड़ होगी। जिसने तो हिस्सा लिया था, शरीक हुआ था, उसने तो पैसे दिए, गोश्त भी जो है उसको जो मिला बेचारा लेकर के चला गया और कुछ नहीं, उसको तो कुछ नहीं जो है। अल्लाह ताला उसकी नियत के लिहाज से उसको अजर भी दे देगा, लेकिन ये जो इसका जो है अरेंज करने वाला है, यकीनन ये पकड़ा जाएगा क्या, क्योंकि घपले जो है इसमें बहुत बहुत इस तरह की चीज है। इतने कमजोर लागर और दुबले जानवर ला करके काट करके जो है, वो भी मैंने देखा अपनी आंखों से, इतने छोटे और कमजोर जानवर 5-5 हजार के जो है वो लिए हुए थे शेयर लोगों के, और जो जानवर ज़बह करके उनको गोश्त दिया गया, यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये उस लायक नहीं। इस साल भी जो है ऐसा हुआ कि बाज़ लोग जो है तमिलनाडु में हिस्सा ली, यहाँ तो पाबंदी थी, तमिलनाडु में हो सकती थी बड़े जानवर की कुर्बानी, तो वहाँ बाज़ लोगों ने हिस्सा लिया। 5000 का शेयर था और जो गोश्त मिला उनके हिस्से में वो 10 केजी से भी कम। अब सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, कौन सा बड़ा जानवर है जो छोटे जानवर के गोश्त के लिहाज से उसका जो है गोश्त रहेगा। तकरीबन छोटे जानवर के गोश्त का जो कीमत होती है ना, वही पड़ेगा। 600 रुपया केजी बिकता है यहाँ पर जो है कई रोज। ये गोट जो है और शीप ये 600 रुपया केजी बिकता है, और तकरीबन जो है 600 रुपया केजी वो भी गोश्त जो है पड़ा था। मैं कीमत लगा रहा हूँ, वैसे कुर्बानी के जानवर की कीमत नहीं लगाई जाती है, गोश्त की कीमत नहीं लगाई जाती है, लेकिन एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको। कहाँ तक इसमें अमानतदारी होगी आप खुद सोच सकते हैं कि शेयर लेने वाले ने शेयर कितने का लिया और जानवर कैसा ज़बह हुआ और कितना बड़ा जानवर ज़बह हुआ। ये तो आम तरीके से लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, पता भी किसी को नहीं होता। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए हम मशवरा यही देते हैं लोगों को कि आप शेयर हरगिज मत कीजिए। उससे बेहतर ये है कि आप छोटा जानवर, चाहे गोट हो चाहे शीप हो, आप खरीद लीजिए और कुर्बानी कर दीजिए, वो बेहतर है बजाय जो है इस तरह से शेयर लेने की। और अगर इतना नहीं है, शेयर सस्ते में हो जाता है और उसके लिए आप शेयर लेना चाहते हैं, तो भी मैं ये समझूंगा कि बेहतर फिर ये है कि आप लोग इकट्ठा हों, 7 आदमी इकट्ठा हों और खुद जानवर खरीदें, जानवर अपनी निगरानी में रखें और खुद जो है उस दिन कसाई को बुलवा करके खुद अपने हाथ से ज़बह करके कसाई जो है उसकी नाव करके आपका जो है गोश्त पूरे तरीके से पीस पीस करके जाए, जो मजदूरी बनती है मजदूरी दे, ये शक्ल इख्तियार की जाए। ये बेहतर शक्ल है, ये उसकी अच्छी शक्ल है, सही शक्ल है, और यही शक्ल थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ऐसे ही ऊँट का मामला भी, ऊँट में भी जो है चूँकि शराकत जायज़ है और ऊँट की कुर्बानी और के लिए पाबंदी का कोई मसला नहीं था, यहाँ पर भी लोग कर सकते थे, लेकिन उसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते हैं आम तरीके से। तो 7 आदमी 10 आदमी तक भी उसमें शरीक हो सकते हैं, पैसा लगा करके शरीक हो जाए। लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल काम है उनके लिए, परेशानी का काम है। और चूंकि सिर्फ जो है अगर वो उस पर शेयर ले रहे हैं तो सवाब के लिहाज से वो ज्यादा नहीं है शेयर में। एक जो है शीप और गोट की कुर्बानी, उससे ज्यादा सवाब की हामिल होगी और उससे ज्यादा सवाब की जो है ये कुर्बानी होगी जब अकेला आदमी कुर्बानी जो है गोट की या शीप की देता है। ये बात थी मेरे भाइयों, क्योंकि गोट और शीप में तो शराकत दारी नहीं है, उसमें शेयर का मामला ही नहीं है, इसलिए बात मैंने आपके सामने ये जिक्र की है।
ये चंद बातें थी जानवरों में शेयर लेने के ताल्लुक से और कुर्बानी के ताल्लुक से। अभी कुछ जो है मसाइल जानवरों के ताल्लुक से रह गए हैं, शेयर के ताल्लुक से भी रह गए हैं। गोश्त की तकसीम का मैंने जो आपसे कहा कि जब 7 आदमी शरीक होंगे तो बराबर बराबर गोश्त की तकसीम भी होगी, जिसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि तौल करके तकसीम कर दिया जाए, और ये भी कोशिश की जाए कि जब पीस किया जाए तो हर जो है जगह का, क्योंकि जानवरों के गोश्त जो होते हैं तो मुख्तलिफ पार्ट उसके अच्छे माने जाते हैं बाज के मुकाबले में, तो उस लिहाज से हर पार्ट से जो है पीस हर एक को मिले और तौल करके बराबर तकसीम कर दें, ये सबसे बेहतर शय। लेकिन अब कौन तौलने जाएगा? कुर्बानी के जानवर का गोश्त है, क्यों उसको तौला जाए? तो उसके लिए अंदाजे से भी हिस्सा अगर लगा दे तो कोई हरज की बात नहीं है, सब लोग राजी हैं तो कोई मसला नहीं, क़यामत के दिन कोई पकड़ नहीं होगी और सब लोग चलो हम आपकी जो है एक हिस्सा लगा करके एक हिस्सा हम लोग ले लेंगे, कोई बात नहीं है, और सबके सामने हिस्सा लगा दिया जाए और सब लोग उस हिस्से से मुतमईन है, सब लोग लेकर के चले जाए, कोई बात नहीं। लेकिन बेहतर शक्ल हमने आपसे कहा यही है जिसमें शुबहे की कोई गुंजाइश न रह जाए कि उसको तौल लिया जाए। बात मतलब समझते कि तौल लेने से गोया कि हमारा सवाब चला गया और गोया कि हमने इसको खरीदने बेचने, ये खरीदने बेचने का मामला नहीं है, ये तकसीम का मामला है। तकसीम जितनी ज्यादा इंसाफ पर मबनी होगी उतना ही सबके लिए बेहतर है, और इंसाफ पर मबनी तकसीम का बेहतर तरीका यही है कि उसे वजन कर लिया जाए, तौल लिया जाए। अगर नहीं करना चाहते वैसे भी तकसीम कर लो और हर एक दूसरे से राजी हो, उसमें जितना उसको मिला है हाँ ठीक है, मुझे कोई उस पर एतराज नहीं, और चाहे कमी बेशी हो तो कोई मसला नहीं, जो मिला है ठीक है, तो सब राजी हो तो भी अल्लाह ताला के यहाँ कोई पकड़ नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। तो मेरे भाइयों ये चंद बातें थी। अब एक मसला और था कि ये जो बड़े जानवर में शिरकत की बात कही गई है, शेयर की बात कही गई है, तो बाज़ मतलब ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग कुर्बानी और अकीका का शेयर मिला देते हैं, यानी बाज़ लोगों की कुर्बानी होती है और बाज़ लोगों का जो है उनका या उनके घर में से किसी बच्चे का अकीका उस नाम से शामिल कर लेते हैं। तो ये एक मसला है कि क्या कुर्बानी के जानवर में अकीके के लिए जो ये शराकत की जाती है, ये जो शेयर लिया जाता है, क्या ये सही है या नहीं है। आज का दर्स चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है तो मैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने इस मसले को वाज़ेह करूँगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।